वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। हाँ, तो आज आर्टिकल कोई स्पिरिचुअल ट्रेजर्स में से है सूर्यानंद जी का, उसको समरी करेंगे शोभा। ठीक है? हाँ स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी और सभी मुमुक्षुजनों को मेरा नमस्ते। पहले तो थैंक्स फॉर गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटी टू डू द समरी। आज बहुत अच्छा है, हमें बहुत एश्योरेंस मिल रहा है इस आर्टिकल से। सो स्वामी जी सेज हियर, बिलीव दैट इफ एनीबडी प्रेज टू हिम होल हार्टेडली, he fulfills that prayer. But it is also absolutely true, equally true, that without his grace, one cannot pray properly. And Swamiji adds that who takes refuge in God, all his troubles cease, and Lord carries all his responsibilities. As you have taken refuge in the Lord, you have nothing to worry about it. You will see how the Lord is slowly guiding you towards him and how your spiritual thoughts are replacing worldly thoughts. When you reflect on this truth, your mind will be automatically filled with strength, zeal, faith, and devotion. So there is no other way than to depend on his grace. In time, he will fulfill all your wishes. So उनके ऊपर निर्भर करना ही एकमात्र उपाय है और समय आने पर वो हमारी कामनाएं जरूर पूरा करेंगे, ये हमें एश्योरेंस यहाँ मिलता है। The goal of human life is to realize God, and God realization is only possible in human life. So it is the best life. Sense enjoyments can be have in other lives also, but God realization is possible in human life only. So metaphysically speaking, the goal of human life is cessation of all misery and the attainment of supreme bliss. So it is the law of nature that one gets what we want. So desired object is obtained if one has sincere earnestness and yearning. You have heard that one realizes God when one has such a longing that life without God is unbearable. If you can develop that longing in this life, you will succeed. और हमें पता है कि ठाकुर ने भी माँ के दर्शन के लिए तलवार उठा ली थी. So Master used to say, be merged with him. And Krishna says in Gita, he who does my work and looks on me as a supreme goal, who is devoted to me and who is without attachment and without hatred for any creature, he comes to me. His grace is the only means to realize him. Swamiji used to say that, is God like fish or vegetable that you can purchase for price? Can anybody put a price tag on God? So no, he can be attained only through his grace, and his grace dawns on that person who wants patiently at his door. स्वामी जी में बहुत बार बोलते हैं कि पड़े रहो दरवाजे पर तो ही उसकी ग्रेस मिलेगी. तो यहाँ भी यही कहा है कि he who can be attained only through his grace, and his grace dawns on the person who waits patiently at his door. You will succeed when you surrender yourself fully to him, offer everything to him, and be the rest. So move towards him as much as you can, and then he will help you to the best. Swamiji used to pray thus, my only desire is to know thee. O Lord, free me even from this desire also. The more you know that the Lord is your own and experience his close presence, the more worldly suffering will disappear and you will feel great joy and comfort. Master used to say that you go towards the west, the further you will be from the west. The Lord is always present in your heart. We must keep our attention on him. God is the soul on our souls, the life of our lives. It is through his grace and that we are alive and functioning in this world. Therefore, he is truly the first object of our love. So, Swamiji adds in this that having come to this transitory and joyless world, worship me, fix your mind on me, be devoted to me, sacrifice to me, bow down to me. Having thus disciplined yourself and regarding me as the supreme goal, you will come to me.
happiness and misery, none of them is permanent in this world. So the Lord has advised us to go beyond both. That is possible if we can fix our minds completely on Him. Here is a nice poem. They say, "O foolish mind, think of Rama always. O tongue, chant unceasingly the name of Rama only. Hear the story of Rama only, and O eyes, behold every." So, once this letter, which is written to Bihari Babu, who was depressed mood, low self-esteem. So Swamiji says here to him as, "It is not good either to harbor negative thoughts such as my life is worthless, I achieve nothing, but rather than he instructed us that you think emphatically and repeatedly, I am the child of God. What fear have I? Through his grace, I will easily cross the ocean of Maya." One should have faith that if one takes refuge in God wholeheartedly, even for a moment, one's life will be pure and blessed, and all imperfection will go away, will disappear. God always dwells in our hearts. If He did not, there would be no hope of meeting Him anywhere else. शोभा हाँ स्वामी जी, थोड़ा माइक को थोड़ा सा दूर रखो तो आवाज थोड़ा सा ब्रेक कर रहा है. अच्छा अच्छा, ओके, स्लाइटली माइक को थोड़ा सा मुंह से दूर रखना. हाँ अच्छा अच्छा. अब God is आवाज also Guru. God is also Guru. My Lord is the Lord of universe. My Guru is the Guru of world. अभी ठीक है स्वामी जी? सबको संजय थोड़ा सा वॉइस क्लियर करो तो. हाँ हाँ बोलो तो, हाँ बोलो. God and Guru are always within us. If not, how could we live? Who would always protect us? He is bestowing grace on everyone. Those who seek Him always find Him. And here is the example is given. The domestic cat becomes a wild cat when it goes into the forest. Like that, our ordinary eyes and skin becomes transformed into the divine when one realizes the God. The word also gets value when it tries to express Lord. God purifies every being and pervades everything. His one foot is in this universe and all beings. Whom shall we worship other than Him? And we have every right to worship Him. He is our life of life and eye of eye. Whether we know it or not, undoubtedly He is our all in all. Therefore, we should offer ourselves to Him and fully abide Him. May we not see anything else but Him. Here again, Swamiji is saying that a cloudy day is not considered a bad day. So then what is the bad day? The bad day is the day we do not drink the nectar that springs out of God. So days pass through happiness and misery, good and bad. But if the day goes without worshiping God, it is the waste of the day, waste of the time. So practice more and get absorbed in Him. Only then will your life will be blessed. Do only that much work. It is necessary to maintain the body, and it is better to do that work calmly rather than with disgust. थोड़ा स्लो भी करो, स्लो करो, बहुत फास्ट कर रहे हो. शोभा जी, if you switch off your video, maybe the voice will be clearer. देखो आप थोड़ा सा bandwidth का issue हो सकता है. Okay, okay. Remain wherever God keeps you and pray to Him to your heart content. One place or another place does not make much difference. Here, Swamiji was writing that Internet is not good. Internet is not good. नहीं चल नहीं रहा. वो इंटरनेट ठीक नहीं है हमारा. हाँ, कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है. Bandwidth issue. अब करिए. आप करो तो. हाँ. To do your one right. Wherever God keeps you and pray to Him your heart content. One place or another place. When He is coming here,
Shobha ji, you're not audible. Audible. Let us do one thing. Except Maharaj ji, let us all switch off our video and see if it helps her. Except for Maharaj ji. Hello. हाँ, शोभा जी आप बोलिए. So Swamiji says here, remain wherever God keeps you and pray to him to your heart's content. One place or another place does not make much difference, but it is good to have a place where it is convenient to practice spiritual disciplines. If your home is a convenient place, what is necessity of going somewhere else? Try to do your worldly duties with utmost detachment, and you can accomplish this through the practice. So here Swamiji reminds us that great mantra, Naham Naham Tuhi, not I, but thou, O Lord. Always think of him. Then you will find that all worldly thoughts will dissipate. Physical elements are obstacles to the recollectedness of God. Therefore, you should try to keep body fit and free from disease. So you should take care of body spiritual practice. And here again, Swamiji reminds us that he who takes refuge in God has no fear or anxiety. God gives all help and attracts his devotee towards him. So he who continues his spiritual practices under both good and bad conditions and does not neglect his sadhana, gradually his mental fluctuations will go away and one blissful current will flow in the mind. Those who continue his sadhana under all circumstances and experiences great joy within by God's grace, when a person attains this state, he becomes blessed. Swamiji says that the mind becomes impure when it is swarming with desires and becomes pure when it is free from desires. Now the main task is to make our mind unselfish by any means, whether it is through meditation or service or discrimination or devotion. So everyone has their choice. But everybody has to destroy our ego. And when this little ego will dissolve, one will experience the cosmic ego or Brahman, or also called as Jivan Mukti, or freedom from living in the body. So Swamiji assures here again, the grace of Lord is always there. It is never absent. When the mind is purified, one experiences and tastes fully that divine grace. So you have to experience the divine grace. Self-knowledge is ever existent. It has no past or future. The sun appears when the cloud is blown away. Similarly, the ignorance is removed. The self illuminous, ever present and self manifest. There is no refugee other than God, because he alone is true and eternal. Everything else is impermanent. It exists this moment and disappears the next. It is therefore meaningless to depend on imperfect object. Therefore, the Lord tells us the secret. The Lord tells us secret that those who take refuge in me alone shall cross over this Maya. गीता में कहा है कि माम एक शरणम ब्रज, प्रभु के शरण के सिवा अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है. Here again talking about the practicing steadiness of mind. और गीता में अर्जुन से कहते हैं भगवान, O Arjuna, fix your heart constantly on me. When this is done, all troubles will cease. One becomes established in God consciousness when practice has been cultivated for a long time, uninterruptedly, with faith and devotion. Stick to God. Gradually, you will be divine. One should learn how to be united with God, and through practice, when it becomes one's second nature, one attains the goal. Then one perceives the presence of Lord within and without. And so consequently, the changing circumstances of the world cannot perturb anymore. It is not disturbing elements do not arise. They do, but they come and go away without having any effect. Suffering is inevitable for all embodied beings. The wise man endures affliction calmly, knowing it is unavoidable.
whereas the ignorant man makes himself miserable by constantly weeping and wailing. So it is up to us how to choose our life. The master will make everything favorable for you. Those who have surrendered themselves to him have no fear. Then here, Swamiji is asking Swami Turiyananji about the food habits, eating non-vegetarian diet and all. So here Swamiji says, the food is the base which help a person to fix the mind steadily on God. This is the way you can judge whether the food is sattvic or not. So therefore, it is advisable to eat that food which keeps the body healthy and helps one to practice spiritual disciplines. Then Swamiji, this Bihari Babu has again depressed and in low esteem. So here Swamiji guides him and guides completely. The master taught us to repeat, I am, your self-reproaching attitude. So we have heard from the master that this is an obstacle to spiritual progress. Knowing your strong relationship with God, you have to move towards him. Never forget that you are his child. Human relationships are casual and momentary, and the relationship with Lord is eternal. So whether you are good or bad, you are the child of Divine Mother. There is no doubt about it. If a person thinks of God, although he eats pork or his food becomes equal to the purest food, such as boiled vegetables, rice. On the contrary, if a person eats the pure food but harbors jealousy, hatred, lust, greed in his mind, then what is good in that food? Then talking about the treasure, holding what treasure shall I live in this world? O Lord, you are my only treasure, the priceless treasure on my heart. Renouncing all, it is better to live with you in a hut. When, O beloved Lord, you illuminate me, my heart, forgetting all miseries, I pray, don't leave me, O believed. Leaving you, how I shall live engrossed in this world. You are mine forever. If we can live a God-centered life, no miseries can touch us. Once we attain him, we have everything. We require nothing else. Holy company is the best means of God realization. You have also mentioned that the proof of existence of God is God himself, a great truth. So existence of God is God himself. और यहाँ पर लव खराब हो कुश गया। का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है. Who can know God? It is possible only if he reveals himself to suffer. I have not let myself be captured. ठीक सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं हेलो नहीं कट ये हो रहा है थोड़ा बहुत ठीक तो है, इंटरनेट थोड़ा बहुत ठीक है, आगे से अच्छा है, आगे से बेटर है। बीच बीच में खराब हो रहा है। अच्छा अच्छा तो ये लव और कुश ने जब भगवान को बांधा था तो बोल रहे हैं यहाँ कि if I had not let myself be captured, could you have captured me? So one cannot attain God through self-effort by performing spiritual practice. It is only possible to attain God if he reveals himself. So Swamiji says here that I am overwhelmed with joy to see that the attitude of self-surrender is infused in every line of the letter of Swamiji. When he was Varanasi, he was confused that where to go. So here Swamiji guides him that where will you go? The mind is restless by nature. Will it be calm if you change your location? You are supposed to be quiet, the mind within, and must rise above circumstances. If you are a slave to circumstances, they will follow wherever you go. But you have full control over the circumstances. They cannot create
any more trouble to you. Our will is God's will. This conviction does not arise when one is in ignorance. God's will is established in truth, but man's will often become falsified. For this reason, one cannot say that man's will is the same as God's will. If one's heart is purified through the grace of God, one gets right understanding about everything. Then practicing about the sadhana. Here Swamiji says, sing his name as long as there is a life in the body. O beloved, I will soothe the pangs of my heart by singing your name. So love is the best form of spiritual practice. What else is spiritual practice? Love towards all beings is the spiritual practice. अरे स्वामी जी नहीं दिख रहे भाई, स्वामी जी नहीं दिख रहे। संजय जी, स्वामी जी कहाँ है? Let her complete the passage. Let her complete the passage. Please continue. नारदा भक्ति को डिफाइन करते हैं लव को. The real nature of supreme love is inexpressible. It is like a dumb man trying to express his experience of a delighted taste. When God's name is sung, he reveals himself without delay and makes the devotee experience that love. Therefore, there is no better means than singing of his name. It is said that in this Kali Yuga, chanting the Lord's name is the only way to attain realization. And a master used to sing, Thakur Hardam kehte the, O Mother Shama, chanting the Lords of perfection. Thank you everyone and sorry for disruptions. So in short, भगवान हमें assure करते हैं कि अगर हम if we do wholeheartedly prayer, he will fulfill the prayer, and it is absolutely true that without his grace one cannot pray properly. और जैसे स्वामी जी हमें कहते हैं कि भी पड़े रहो दरवाजे पर, refuge in the Lord. तो यही इसका सार है कि उन्हीं पर निर्भर रहना है, ये एकमात्र उपाय है. समय आने पर हमारी कामनाएं जरूर पूरी करेंगे. थैंक यू. Very good, well done. Very good. बहुत बढ़िया. Well done. ये थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस था लेकिन पूरा अच्छा ही था. तो सबने आपने अच्छा किया है. बहुत अच्छा हुआ, लेकिन महाराज जी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे अभी. थैंक यू. सब्जेक्ट ही बहुत अच्छा है आज. हाँ, आ गया महाराज जी, आ गए. हाँ, महाराज जी ज्वाइन कर रहे हैं. प्रणाम महाराज जी, प्रणाम. ऑडियो अब ठीक हुआ संजय, we can start. जी महाराज. नीचे आ गया, हम यहाँ पे अच्छे थकने से आ रहे हैं. तो अब क्या शुरू करें? जी महाराज, क्वेश्चन शुरू. सॉरी हमारा डिस्टर्ब हो गया था. हाँ. संजय महाराज शुरू करें. कंक्लूज हो गया, अब समरी जस्ट कंक्लूडेड. तो अच्छा, अब ठीक है. क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे. अभी वीडियो ऑन कर सकते हैं लोग. चलिए क्वेश्चन सर. सबसे पहले दिलीप भाई. दिलीप भाई आपका नंबर सबसे पहले है. जो क्वेश्चन पहले प्रणाम महाराज. जो क्वेश्चन पहले पूछता है उसको क्वेश्चन पूछने का भी वो उसका आंसर करने का भी पहले मिलता है. और ये सब नियम है हमारा, समझे? आपने सबसे पहले क्वेश्चन पूछे थे. हाँ, ओके जी. जी महाराज जी, प्रणाम. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, you will experience the truth of the Lord's words when you watch your own mind. How mind can be watched or can be controlled and
to experience the truth. क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है महाराज जी, how mind can be watched or can be controlled and to experience the truth. अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्योंकि बताओ। यहाँ लिखा है you will experience the truth of the Lord. अच्छा 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 अच्छा, तुम्हारा आपका ये कहना है कि माइंड, हाँ पहले तीन क्वेश्चन है, अलग करके करते हैं। हाँ हाँ जी जी जी, पहला जी, ये महाराज। है कि आपका माइंड, हाउ कैन यू माइंड बी कंट्रोल, है ना? हेलो, हाँ, कंट्रोल कैसे करें या उसको देख कैसे सकता है? ठीक। अच्छा आप माइंड को क्या देख नहीं सकते हो? क्या देखा नहीं है क्या कभी आपने माइंड को? ये माइंड यानी विचारों को आप देखते हो कि नहीं? विचार हमें पता चल जाते हैं कि नहीं हाँ। पता चल जाते हैं? जी, और हाँ? हाँ पता चल गया, अब उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? How to नहीं, पहली control? बात तो हो गई ना, पता चल गया ना, देख लिया, हाँ ये मालूम हो गया ना। जी हाँ अब उसके, हाँ ये पहली बात तो हो गई ना, पहला जवाब हो गया, हाउ टू सी द माइंड, जी है ना? यस माइंड को हाँ। देखना हो गया। अच्छा, दूसरा है हाउ टू कंट्रोल द माइंड, यस है ना? यस यदि अगर आपका मन जा रहा है और हाँ। सड़क पे जा रहे हैं और आपका मन चला गया दुकान के ऊपर और वहां खाने की चीज है, तो आपका मन वहां जाएगा और उसको ले लेगा। आप कंट्रोल करते हो कि नहीं करते हो? हाँ तो ये हो गया दोनों। दूसरा क्वेश्चन भी नहीं महाराज जी, कंट्रोल, हाँ फिजिकल कंट्रोल हुआ, पर मेंटली तो हमारा माइंड नहीं तो नहीं उस नहीं नहीं, दुकान पर मेंटली गया ना नहीं मिठाई के। नहीं नहीं नहीं, आपने मन जो कह रहा है कि वहां जाओ, हाँ तो मन की बात को आपने पकड़ ली, चुप, मन नहीं जा सकता वहां पे। मन को आपने खींच लिया, अच्छा यस मन को खींच के आपने दूसरी जगह लगा दिया। हाँ हाँ, तो ये बराबर। तो मन, सारा काम, दुनिया भर का काम जो है वो मन के द्वारा ही होता रहता है। हम मन को जी कंट्रोल करते हैं, उसके द्वारा किया करते हैं। बराबर। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या था आखिरी में? दो हाँ, तीन थे ना? टू एक्सपीरियंस द ट्रूथ। हाँ, अच्छा ध्यान करते हो तब क्या करते हो? ध्यान के तबे भी तो मन को कंट्रोल करते हो कि नहीं करते हो? हाँ करना पड़ता है। हाँ करते हो ना। तो अगर बिल्कुल। ध्यान को आपको, हाँ मन हाँ को बिल्कुल। कंट्रोल करोगे तो यू विल एक्सपीरियंस द ट्रूथ। यस यानी हम ट्रूथ को एक्सपीरियंस करते हैं। ट्रूथ का कैसे एक्सपीरियंस होगी? हम अपने मन को जब कंट्रोल करेंगे, एकाग्र करेंगे मन, तो हमको ज्ञान प्राप्त होगा, साक्षात्कार होगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया जवाब। जी, अब महाराज जी मेरा इसमें छोटा आपका सप्लीमेंट क्वेश्चन आके ये खड़ा हो गया कि जब हम सड़क पे जाते हैं और मिठाई की दुकान देखते हैं, लेकिन वहां न जाते हुए माइंड को कंट्रोल करके सीधे रास्ते निकल जाते हैं। दैट्स राइट। जिस समय हम मेडिटेशन करने बैठते हैं उस समय भी माइंड इधर उधर घूमता रहता है, फिर उसको पकड़ के ले आना पड़ता है। हाँ हाँ वो पकड़ के लाना पड़ता है, यही तो साधना है। जी प्रश्न ये है कि देखो, ये बात मान के चलो कि मन को कंट्रोल किया जा सकता है, ये सिद्धांत है। और साधना इसीलिए करते हैं कि मन को कंट्रोल करें। मन को कंट्रोल करने पर हम बहुत सारी बातें प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। यह है प्रिंसिपल, साधना का प्रिंसिपल ही यह है। करेक्ट। जी जी महाराज, बराबर जी महाराज। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 145। संन्यास इज अ वेरी, हाँ ये हुआ। संन्यास is a very difficult undertaking. The master used to say they are only fit for sannyasa who have the courage of jump from the top of a tree in the name of the Lord. It is not easy. It is not possible without complete resignation to God. Now my question here is कि
please explain the difficulties what sannyasa has to face. क्या? हाँ. अरे कभी तो को थोड़ी सी बता देता हूँ। कभी रोटी घी में सना, कभी सूखा चना, कभी वो भी मना, अने कभी पेड़ के नीचे रहे। नहीं, आवाज नहीं क्लियर क्या? हाँ. अब आ रही है आवाज? मैं तो बस ठीक वैसे जैसा वैसा ही बोल रहा हूँ। आ रही है बात। हाँ, पेड़ के नीचे रहे। हाँ जी. हाँ, और कभी कुटिया में रहे, हाँ. कभी नदी के किनारे रहे, Yes. कभी पैलेस में रह ले। हाँ. तो जो सन्यासी है उसका तो घर भी नहीं है, उसका किचन भी नहीं है, खाना कहाँ बनाएगा और कहाँ रहेगा? जहाँ जगह मिल गई वहां रह लिए, और जहाँ खाना मिल गया हाँ. वो खा लिया। राइट राइट ठीक महाराज जी. ये जो हाँ? पूरी स्वामी विवेकानंद की लाइफ शुरू की यही थी. अरे शुरू सभी की लाइफ ऐसी रहती है। हम भी रहे हैं कुटिया में भिक्षा मांग के। जी 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 महाराज. और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जंगल में जाते थे, कोई एक कमरा मिल गया था। हाँ. ये सब हम अच्छा. लोग जान के, हम जो सब लोग जानकर ही साधु बनते हैं। आजकल तो जमाना बदल गया, लेकिन जानकर ही साधु बनते हैं कि यही है साधु जीवन। अच्छा जी. राइट महाराज जी. Now my हाँ। third question, there is no doubt that one should practice japam and meditation, but there is no guarantee that by doing so one will attain God. Many a place in different letters, Swami Turiyanand ji has uttered this sentence. What is the reason? नहीं, क्यों ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हम 10 लाख जप करेंगे तो नहीं भगवान होने मिल वाला। जाएंगे। ऐसा हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ रुपया दोगे तो एक मकान मिल जाएगा, ऐसा है ना। संसार में तो हाँ। कैलकुलेशन है ना कि 1 जी, जी। करोड़ रुपये में आपको एक मकान मिल जाएगा, इतने हाँ। लाख रुपए में फलानी कार मिल जाएगी आपको। जी, तो ऐसा जी। है कि 10 लाख जप करे तो भगवान मिल जाएगा, ऐसा कैलकुलेशन नहीं है। यस। समझे दिलीप भाई कि हम 5 साल 10 साल 15 साल के साधु हैं, इतनी तपस्या की है, भगवान मिलना चाहिए, ऐसा कैलकुलेशन नहीं है। ये लो कम का लिस्ट ले लो। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी जी महाराज जी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि भाई मैंने मतलब इतने साल तक जब किया तो मेरे को भगवान मिलना चाहिए, मैंने सब छोड़ छाड़ के तपस्या की, भगवान नहीं मिले। हाँ, तो भगवान ही बोलते हैं कि मैं ऐसा खरीदने वाला तो नहीं हूँ कि मैंने ऐसा कर दिया कि 50 साल का साधु होना चाहिए और 1 लाख जब रोज करना चाहिए, इतना करने पे मैं मिलूंगा। भगवान ऐसा बोलते हैं कि मैं ऐसे नहीं मिलने वाला हूँ। ये भगवान जो है ना वो एक कमोडिटी नहीं है मार्केट की। मार्केट में वो चीज नहीं है भगवान के जब इतने रुपया पैसा इतना दे के, इतना जप और ध्यान दे के भगवान को खरीदा जा सके। राइट जी महाराज। हाँ, इसीलिए तो बात ऐसे कहता, फिर क्या मालूम क्यों करें भगवान को, क्या करें, कुछ तो मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे भाई मालूम होता कि भाई 50 साल की तपस्या करने के बाद 1 लाख जब रोज 50 साल तक करने भगवान मिलेंगे तो हम करते। नहीं, ऐसा नहीं है बाबा, यहाँ इस रास्ते में मत आना तुम। ऐसा कुछ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हो गया जी महाराज जी। मैंने इसका अर्थ ये हुआ कि वी आर प्लेइंग इन द ब्लाइंड। प्लेइंग इन द ब्लाइंड, अंधेरे में खेल रहे हैं कि हमें जब करें ये करें उसके बाद। अंधेरे में हो कि उजाले में हो तो कुछ नहीं है। हमको तो भगवान का दर्शन न भी होवे, भगवान का नाम लेने में मजा आता है। जी जी महाराज। तुम चाहते हो भगवान का दर्शन करके तुम दिमाग खराब कर रहे हो। हम तो भगवान का नाम लेते हैं, मजा आता है उसमें। अच्छा, हाँ, बस महाराज करेक्ट। बिल्कुल यही सोच के काम करना है। चलिए महाराज। हाँ, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, if one can wait at the Lord's door
at the right time he will fulfill all one's wishes. उसका जवाब तो ये यहाँ पे आ ही रहा है कि हाँ, तो ईश्वर के दरवाजे में बैठे रहो, कभी कुत्ते ना की कभी यदि उसकी कुत- मेहरबानी होगी तो अंदर बुला लेगा। कुत्ते जी यार। कुत्ते की तरह कहते हैं, कुत्ते की तरह मालिक के दरवाजे पे पड़े रहो बस। Yes. तो कुत्ते को और कुछ नहीं करना है, मालिक के दरवाजे पे पड़े रहना है। वो कभी न कभी खाना दे देगा, बस मालिक के दरवाजे पे पड़ेगा, नहीं देगा तो भी पड़ा रहेगा कुत्ता, और खाना देगा तो भी पड़ा रहेगा, वो वहां से जाएगा नहीं। Oh, right. जी जी महाराज, हम्म। चलो अच्छी बात है महाराज जी, धीरे धीरे समझ में आएगा। Very difficult. हाँ, my next question. God and Guru are within us. Maharaj ji, God, we say within us, but we always see Guru. How we can see Guru within us? Secondly, देखो, how we can put Guru along with the God in the heart? हाँ, तो प्रश्न क्या है आपका? महाराज जी, इसके तो गुरु तो बाहर रहता है, अंदर कैसे आ गया, यही पूछ रहे हो ना? अंदर ये, हाँ, तो ये मेरा पहला सवाल है। हाँ, तो गुरु तो बाहर है, अंदर कैसे आ गए? ऐसा है कि वास्तविक गुरु हमारे अंदर हैं। ये जो बाहर दिखाई देते हैं ना, वो तो प्रतीक हैं। भगवान जो है सच्चिदानंद गुरु वास्तविक गुरु हैं। और कहते हैं, ध्यान करते समय बोलते हैं कि ध्यान करो, हृदय में भगवान का ध्यान करो और सिर में गुरु का ध्यान करो, यहाँ पे गुरु का ध्यान करो। अच्छा, तो गुरु का स्थान है ये मुराद, ये अपने शस्त्र। हाँ, और हृदय है ठाकुर का, अपने भगवान का स्थान। तो दोनों जो है सच पूछा जाए अंदर ही है। जब भगवान भी अंदर हैं और गुरु जो है बाहरी रूप धारण कर लेते हैं, वो हम पर कृपा करने के लिए, लेकिन वास्तव में गुरु भी अंदर ही है। वो हमेशा आगे हमारे, तो गुरु तो चले गए, उसके बाद में क्या होगा, आप क्या करेंगे? वो अंतर्यामी होके हमको मार्गदर्शन अभी भी कर रहे हैं जी, हमेशा हमारा मार्गदर्शन अंतर्यामी होके कर रहे हैं। ठीक है जी जी। Now next question. Those who are free remember the Guru of all gods. Narayan means Vishnu. That is what I understand. How can we put God, Narayan and Guru on the same footing? Here God is written in plural and gods are in swar or lok. तो तुम्हारा प्रश्न क्लियर नहीं है। महाराज जी, मैं इसको फिर से क्लियर कर रहा हूँ। Those who are free from attachments, know Brahman and constantly remember Narayan. हाँ ठीक है, देखो नारायण और ब्रह्म एक ही है, उसको कंफ्यूज The मत करो। Guru of all gods. हाँ, बराबर जी। पहला हो गया, The Guru of all gods. नारायण, सुनो, नारायण और गुरु को एक मान लो। जो कुछ लोग हैं निरंतर ब्रह्म का चिंतन करते हैं या नारायण का चिंतन करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी लाइन क्या है? The Guru of all gods, उसी के अंदर सेंटेंस है। वो जो है ना, वो नारायण जो है गुरु के गुरु हैं। ब्रह्म जो है, ब्रह्म या नारायण जो है, वो गुरु के गुरु हैं। ये है गुरु के गुरु, यानी सबसे बड़े गुरु जो है ब्रह्म है, नारायण है, वो सबके गुरु के गुरु, गुरु के गुरु जी। यानी तुम्हारे शरीर धारण, तुम्हारे कोई गुरु होंगे, उन्होंने मंत्र दिया, उनके भी गुरु गुरुओं के गुरु हैं ब्रह्म भगवान नारायण जी। नहीं समझ में आई बात? नहीं, अरे जो गुरु हैं उनके भी तो गुरु हो सकते हैं ना, जो शरीर बाहर। यस, तो वो पेडिग्री चलते चलते वहाँ नारायण तक पहुंच गए। वहाँ जो नारायण है वो सब गुरुओं के गुरु। अच्छा, गॉड्स, गुरु ऑफ ऑल गॉड्स। नहीं महाराज जी, यहाँ लिखा है द गुरु ऑफ ऑल गॉड्स, तो ये ईश्वर का मतलब हुआ ना, गुरु ऑफ ऑल गॉड्स, और नारायण तो ब्रह्मन है। तो जैसे ईश्वर जो है वो सब जितने भी हमारे देवताएं हैं उनके भी ईश्वर। यस, तो मेरा सवाल वही आगे ये है
कि स्वर्ग लोक के अंदर जो रहते हैं इंद्र देवता और वरुण देवता और ये सब उनके भी ईश्वर। हाँ, बस ये गॉड्स का मीनिंग यहाँ क्या, हम स्वर्ग हाँ हाँ, यहाँ वही देवता, वही देवता। को समझे? यानी जितने गॉड्स हैं दे आर इन स्वर्ग लोक और उनके गुरु हैं स्वर्ग ये। लोक में जितने गॉड्स हैं उनके भी देवता हैं ईश्वर। हाँ बस जी जी जी, बस दैट इज राइट। ओके महाराज जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, gods give all help and attracts his devotees towards him. Maharaj ji, if it is so, when we are all ready with the sentence say God gives all help and attracts his devotees, if it is so, then we are already with God. What and how God gives all help and how we should know that the God has or is helping us. अच्छा, ये क्लियर नहीं हुआ, फिर से पढ़ूं क्या मैं? अच्छा, नहीं समझ गया मैं। आपने कहा भगवान कैसे हेल्प कर रहे हैं, है ना, यही तो। हाँ, तो अब आप देख लो। उन्होंने लिखा है कि देखो, आप अपने 10 साल पहले आप कैसे थे और 10 साल बाद अब कैसे, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? जी पड़ा। अब ये कैसा भगवान ने सहायता की कि नहीं की? हाँ करी। बस हो गया उत्तर आपका। ओके, ये समय समय पे ईश्वर सहायता करता है। समय पे के बराबर कर रहा है। समय पे क्या बोलते हो? God gives all help and attracts his devotees. नहीं, attract his devotees towards him. तो ये महाराज जी, ये नहीं लिमिटेड अट्रैक्शन वो करते हैं क्या डिवोटी को? अट्रैक्ट्स हिज डिवोटी टुवर्ड्स हिम लिमिटेड। तुम मंदिर जाते हो तो भगवान अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, पर पूरा ही क्यों नहीं कर लेते? मेरा सवाल ये है पूरा ही क्यों नहीं खींच लेते? जब ये यूज ऑल हेल्प, खींच रहा है, धीरे धीरे खींच रहे। वो अगर तुमको पूरा खींच लेगे ना तो तुम्हारा जो बिजनेस है उसका क्या होगा, ये सोचो तो जरा। जाए महाराज जी, अब आप ऐसी व्यवस्था कर दो। वो ऐसा है ना कि किसी को खींचते भी है ना। जब भगवान कुछ संतों को किसी कृपा करते हैं ना तो उनका सारा संसार बर्बाद कर देते हैं फटाफट। भगवान की जब कृपा होती है ना तो उनका संसार सारा नष्ट हो जाता है। ऐसे संतों की जीवनी है। अच्छा, कहते हैं कि भगवान अगर किसी को प्यार करते हैं ना तो उसकी पत्नी को पहले मार डालते हैं, उसके बच्चों को मार डालते हैं, उसके बिजनेस को डाउन कर देते हैं, उसको कंगाल बना देते हैं। तब वो कहता है भगवान क्या करूं, क्या आ जाओ, मैं तुमको बुलाने के लिए इतना सब किया है मैंने कि तुमको संसार में न पड़ो। राइट दिलीप भाई, भगवान तो खींच रहे हैं, हम ही नहीं जाना चाहते, ऐसा मत समझो। तुम बोल रहे हो कि भगवान पूरा नहीं खींचते हैं तो पहले पूछने के आपकी लॉ ऑफ बिजनेस सारा नष्ट कर देंगे, उसके बाद तुम खींच लीजिए तुमको पूरा। खुद तो तैयार नहीं हो इसलिए बोलते हो भगवान नहीं खींचते हैं क्या? जी बराबर है। हाँ, हम तैयार नहीं है, डरते हैं। महाराज जीसस क्राइस्ट का भी ऐसा ही है उपदेश। हाँ वही तो। सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ। हाँ जी ओके, कठिन है बहुत। महाराज जी, अभी तो हम इतवार को 2 घंटे गांव को छोड़ के आपके पास आए बस। वो भी बड़ी बात है, वो भी बहुत अच्छा है। नहीं, वो अपने मर्जी से। जी महाराज जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यू शुड, महाराज जी ये जरा क्वेश्चन आउट ऑफ बेस सभी का गया है। यू शुड ईट द फूड which keeps your body and mind healthy. The mind should remain in God. That is the main object. Now my question is, food plays a very important role for spiritualization. The tamasic food is never good. In Jainism, Sikhism, Vaishnavism and other
Hindu religion, non-veg is not permitted. Now Jainism has also discarded milk and its products and dependent on vegan products. The food should be sattvic and not tamasic, especially for spirituality. I feel so. Am I correct? And why this हाँ, ठीक है sentence? ठीक है ठीक है ठीक है बराबर? हाँ ठीक है चलो आगे चलो प्रश्न नहीं है नहीं. Okay, now next. I realize that the purpose of human birth is nothing but testing the bliss of Jivan Mukti or freedom while living. Truly, there is no reason for the ever-free Atman to assume a human body, except that it likes to enjoy freedom while in the body. Maharaj ji, once a Jew has realized ever-free, the Atman, then why he should enjoy and coming on the earth? नहीं वो तो उसने आत्मन का एक्सपीरियंस नहीं किया ना, इसीलिए तो जीवन में आया है. यानी आत्मा का श्लोक है, जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त करने के लिए नित्य मुक्त आत्मा का जन्म होता है. आत्मा तो मुक्त है ही, लेकिन मजा नहीं आ रहा है. समझे ना? मैं तो मुक्त हूँ लेकिन मजा नहीं आ रहा है. तो चलो अब काशी चलेंगे, थोड़ा गंगा में बोटिंग में घूमेंगे, थोड़ा बढ़िया खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा आनंद. ये जीवन मुक्त का आनंद प्राप्त करने के लिए नित्य मुक्त आत्मा जो है वो शरीर धारण करता है, ये शास्त्र में लिखा है. अच्छा जी. Now next question. One should not think oneself separate from God. It is not beneficial. This is the sentence. Now my question is, it is also said that all the time to think, you are whole and I am part. Tum अंश हो मैं अंशी हूँ. This feeling should always remember in mind. That is what I think. Am I correct? नहीं क्या मैं क्वेश्चन क्या है आपका? या तो सोचो. मेरा सवाल ये है कि one should not think oneself separate from God. ये सेंटेंस है, जबकि हम ये हाँ और ये भी बताया गया है कि मैं अंश हूँ और तुम अंशी हो. नहीं तुम जो भी हो, तुम ये सोचो कि मैं भगवान के साथ हमेशा हूँ, इसमें क्या नुकसान? निरंतर भगवान ये तो भगवान के ये लिखा हुआ है, बराबर है कि हमेशा, पर ये भी तो लिखा हुआ है वेदांत में कि तुम अंश और मैं अंशी हूँ. तो तीन प्रकार का भाव है. हाँ तो फिर ये हम कैसे? सुनो तीन भाव हैं. एक तो ये है कि मैं ब्रह्म हूँ, अंशी भाव नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ, ये वेदांत का भाव है ना? अद्वैत भाव. अहम ब्रह्मास्मि है ना? हाँ है ना? तो एक भाव तो ये है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ. दूसरा भाव है मैं अंश हूँ और वो अंशी है. जैसे मैं शरीर हूँ तो मेरा हाथ है, उसी प्रकार से मैं भगवान का हाथ जैसा हूँ. और तीसरा है कि मैं अलग हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं अलग हूँ. हाँ, ये तीन भाव हो गए. अच्छा. अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत. अब तुमको जो अच्छा लगे ले लो भाई. अच्छा ओके चलो हो गया. जी महाराज जी. Now next question, only one last. Arjun says in Gita, you alone know yourself through yourself or supreme person. And again Krishna says, neither the host of God nor the great sages know my origin. For in all respects I am the source of the gods and the sages. Maharaj ji, please enlighten me what Lord Krishna says. Host of gods means gods of heaven and sages means the ऋषि. नहीं सेजेस ऋषि तो उसमें क्या है कि भगवान जो है वो सबके देवता हैं. हाँ. देवताओं के भी देवता है, ऋषियों के भी देवता हैं, सबके देवता हैं. खत्म हुई बात. जो ऊपर बताया वो जी. ओके महाराज जी. जी ओके महाराज जी. बस महाराज जी ठीक है जी. चलो बाबा बचे. आपने तो हमके हमारी परेड खींच दी. अच्छा सुबीर मजूमदार आ जाओ.
हाँ प्रणाम महाराज जी। हाँ बोलो। अभी पूछता हूँ महाराज जी। महाराज जी मेरे कुछ सवाल तो पिछले टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि मैंने मिस कर दिया था, तो चलो पहले कोई वहां बात से नहीं, पूछ कर लो। लेते हैं। हाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन पेज 127 लेटर 66, Swami Turiyananda says, if you put all spiritual practice on one side of a scale and the result of a moment's holy company on the other, the latter will be heavier. How is it so? मतलब अच्छा होली कंपनी को इतना भारी पड़ता है, चाहे आप कुछ अच्छा भी कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी महाराज। तो ऊंचे से ऊपर से शुरू करें। ठाकुर के पास 1 मिनट कोई गया हाँ 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 और जी ठाकुर महाराज। ने स्पर्श कर दिया, जी जी जी। बोलो उस स्पर्श की कोई तुलना है साधना के नहीं अंदर? महाराज, मैं दैट उसका तो कोई तुलना नहीं। ब्रह्मानंद जी की भी जी, बिल्कुल महाराज, बिल्कुल बस कुछ नहीं ना। तो नहीं, ये बिल्कुल। जितने उच्च कोटि के संत हैं उनके पास तो एक क्षण में जाने में भी हो जाता है। जी 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 अब आप थोड़ा नीचे भी आ जावे तो भी अगर कोई व्यक्ति ने बहुत साधना की हो, एक संत जो है वो संत कहलाने जैसा संत हो गया हो, जी जी तो उसके पास में भी अगर आप जाओगे तो उसके वाइब्रेशन और स्पंदन का है प्रभाव ऐसा पड़ेगा जो आपकी साधना से आप कमरे में बैठ के कर रहे हो विभिन्न प्रकार का है, वो अपने मन के जी ऊपर आपके मन के ऊपर निर्भर कर रहा है। जब जी कर जी रहे जी हैं मन इधर उधर भाग रहा है, कुछ फल नहीं हुआ। जी जी लेकिन जी एक जी संत के पास में गए तो 1-2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तो बैठे हैं और हमारा सारा मन जो है वो आनंद से भर गया। जी महाराज। अरे भाई इतना तो मेरा जप करने से भी नहीं होता था, फटाफट हो गया। जी महाराज बिल्कुल। ठीक है, हाँ महाराज, वेरी लेकिन गुड। मैं एक सवाल इसमें ऐड करता हूँ कि होली कंपनी में जो डिवोटीज हैं वो भी होली कंपनी माने जाते हैं, तो हम जब होली डिवोटीज के संग हो पाते हैं, क्या वो भी भारी पड़ता है? क्योंकि ये भी। वो इतना भारी नहीं कह सकता जितना जितना संतों के साथ में। जी महाराज। वो यदि संसारी लोगों के तुलना में वो भारी पड़ेगा। जी 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 अच्छा, ग्रेडेशन, ठीक है महाराज। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज जी, हाँ। पेज 129 लेटर 66 में है, स्वामी तुरानंद says that the Mahanirvan Tantra is an authoritative text for householders to attain the knowledge of Brahman. तो मेरा सवाल है, why is it so considered, and ये what is this Mahanirvan Tantra all about महाराज? ऐसा है कि जो वेद है ना, जी तो पहले तो केवल वेद थे, उपनिषद थे, और उनका तो निश्चित किया था कि भाई कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ नहीं सकता था। अच्छा त्रैवर्णिक ही पढ़ सकते थे। वेदों को आपको पढ़ने का नियम होना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, अपने से नहीं पढ़ना चाहिए, इत्यादि इत्यादि सारे बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे। तब ऐसे लोगों को बहुत सारे, और जमाना बदल गया है, सारा पुराने जमाने के लोग बदल गए हैं, अब नई आ गया है। ऐसे में लोगों को शास्त्र में शास्त्र की बातें कैसे बताना। अच्छा, तो ये तंत्रों का रचना हुई। आई सी। हाँ, तो ये तंत्र में क्या है कि आपका खाने पीने से लेकर संसार में जो रह रहे हो, भोग कर रहे हो, उसके माध्यम से भी आपको ऊपर उठाने का उपाय बताया गया है। क्योंकि ये छोड़कर यानी वैदिक शास्त्र प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है ना। जी 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 विवेक वैराग्य यम दम इत्यादि होना चाहिए ना, वो सब नहीं बिल्कुल। मिलेगा तो क्या करेंगे। जी अच्छा, जी जो नहीं है उनके पास उनके लिए भी कर दिया। अच्छा हाँ, हाँ हमारा तो भोग है, तो ठीक है आ जाओ ना, हम पत्नी के साथ भी भोग करना चाहते हैं तो ठीक है, भगवान का नाम लो, ये करो वो करो, जी जी ऐसी प्रक्रियाएं बना दी। यह तंत्र ठाकुर बोलते हैं ना कि भाई ये तंत्र की बात है, ठाकुर ने तो साधना की थी। बोलते हैं जी ना जी नारी को लेके भी साधना होती है, बोले है ना। जी जी हाँ, फिर तो नारी को लेके साधना तो और कहीं तो हो नहीं सकती, तंत्रों में अलाउड कर दिया, क्या करेंगे, लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। जी 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 तो इस प्रकार से बोलते हैं कि ये
तंत्र जो है आज के युग के लिए ऐसा किया है कि जहाँ कहीं भी हो उसके अनुसार तुम आगे चलो। समझ गया महाराज मेरा। हाँ, Very तो good. उसमें उसके साथ में ध्यान कर दिया, कहा कि तुम यार अगर तो भोग करना है तो उसके पहले तुम ध्यान करो, मंत्र जी, जप जी। करो, पूजा करो, उसके बाद, ठीक ठीक समझे ना, उसको भी सारी प्रोसेस बनाती है। जी महाराज, तो बहुत ये अच्छा। तंत्रों का बहुत बड़ा उपयोग। जी जी महाराज, बहुत अच्छा समझाया महाराज। थैंक यू महाराज। एक अगला सवाल महाराज। On page 138, letter 71, Swami Turiyananda quotes Sri Ramakrishna, who says, God is near that person who is simple. So my question is, who is the simple person? मनमुख एक, अच्छा, वो मन के अंदर कोई वो नहीं है, वो क्रिकेट नहीं है, यानी वो किसी को छलना नहीं चाहता, चुपचाप बैठा रहेगा वो और दूसरे को छलना चाहेगा। जिसे बंगला में सरल बोलते हैं, सरल, संसार में जो सरल सरल सरल, हाँ बंगला में सरल लिखा हुआ है। सरल बोल। जी जी तो इसमें उसका कुछ ना, क्रिकेट पर्सन जो नहीं है, यानी जो जिसके अंदर वो किसी को छलने की इच्छा नहीं है, कुछ बाहर बताता है और अंदर कुछ है, वो जिसमें नहीं हो वो उसको सरल पर्सन। और जो कैलकुलेटिंग नहीं हो, मतलब ज्यादा। हाँ, वो कहा ये करूं वो करूं, ऐसा नहीं, सब कुछ है, वो जी तो जी सिंपल पूछा। ठीक है ठीक है। एंड दिस इज फ्रॉम द प्रीवियस आर्टिकल। अब इस आर्टिकल पे आ जाते हैं महाराज। ऑन पेज 145, लेटर 78, Swami Turiyananda again quotes Sri Thakur, who says, they are only fit for sannyasa who have the courage to jump from the top of a tree in the name of the Lord. जिसके बारे में दिलीप शाह जी बता रहे थे। Now my question is Thakur talking about courage or faith? नहीं, वो ऐसा है कि करेज फेथ की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वर्ड करेज यूज किया गया है, लेकिन मेरे को लग रहा है इसमें फेथ, फेथ इज द मोर इम्पोर्टेंट। केवल करेज नहीं है, इसमें सहिष्णुता भी आ जाती है। अच्छा, ये भी आ जाता है, ये सब बातें आती हैं, यानी जो जैसा विधि जैसे भगवान रखेंगे वैसा कंप्लीट सरेंडर। अच्छा तो उसमें अगर जिस दिन खाने को मिला तो ठीक है, नहीं खाने को नहीं मिला तो ठीक है। जी अब जी इसको क्या बोलोगे तुम, धैर्य करोगे कि सहन शक्ति करोगे या करेज कहोगे? अच्छा। हाँ, ऑल किसी ऑफ ने सड़क पे जा रहे हो, किसी ने आपके ऊपर पानी फेंक दिया, चुपचाप सहन कर लिया। जी जी अब जी इसको क्या करेज बोलोगे? कल क्या जा रहा हूँ भाई, क्या मालूम क्या होगा। हाँ हाँ। हाँ, तो अब इसको तुम करेज बोलना चाहोगे या क्या बोलोगे? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सन्यासा। हाँ हाँ अब जी। संन्यास यानी वो क्या है कि सहन शक्ति, अनिश्चितता को स्वीकार करना, ये सब है। एक मानसिक स्थिति है, उसको आप जो बोलना चाहो बोलो। ठीक है महाराज, समझ गया महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, ऑन पेज 153, लेटर 83, Swami Turiyananda talks of Shraddha and says unswerving faith is the most important prerequisite. So, what is the definition of Shraddha? Shraddha को थोड़ा सा elaborate बताइए। वो Because we शास्त्र के discussed- विवेक विश्वास, विवेक चूड़ामणि में शास्त्र और गुरु विश्वास। विवेक चूड़ामणि में उसकी ट्रांसलेट की डेफिनेशन दी है, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणम जी जी मैंने पढ़ा है महाराज। सा श्रद्धा निगत्यते, एक श्लोक में ही है, शास्त्र और गुरु वाक्य को सत्य रूप से स्वीकार करना, इसको श्रद्धा कहते हैं। हाँ, ये डेफिनेशन है उसकी। जी जी जी, तो इसमें सारा कुछ आ जाता है, शास्त्र से गुरु वाक्य से सत्य बुद्धि अवधारण। जो शास्त्र में लिखा है, गुरु ने कहा है उसको वैसा के वैसा। लाटू महाराज ने कहा है कि उन्होंने तो मेरे को कहा है कि रात को नहीं खाना, तो नहीं खाऊंगा, कहा ना, क्या कहा था उन्होंने? हाँ हाँ इन्हीं बोले छेन। हाँ, हाँ। और रात को सोना नहीं, रात को सोना नहीं। सोना, हाँ हाँ, हाँ, लाटू सोना वो गुरु ने बोल दिया तो बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया। संभव है कि नहीं संभव है सोचते ही नहीं है उसके बाद। जी, दैट लेवल ऑफ श्रद्धा, ठीक है। एंड महाराज लास्ट क्वेश्चन है, ऑन पेज 162, लेटर 92, स्वामी तुरानंद टॉक्स ऑफ लव टुवर्ड्स ऑल बीइंग्स। हाउ कैन आई लव ऑल? फॉर एग्जांपल, आई कैन लव ए टाइगर और ए हायना। मैं थियोरेटिकली लव कर सकता हूँ, वो मेरे से बहुत दूर है, और उनमें मैं समझ सकता हूँ कि उनमें नारायण है,
but how do I love a wicked person who means to harm me? उसके प्रति मैं कैसे लव डेवलप करूं? महाराज मेरी आवाज आई? महाराज कट गए हैं। तो हैं, महाराज म्यूट हो गए। महाराज हाँ। आप अनम्यूट कर लीजिए, वो होम स्क्रीन पे टच करेंगे तो नीचे 2 बटन आएंगे, अनम्यूट करना है, माइक वाला आएगा और वीडियो वाला आएगा। हाँ अब आ गया। जी हाँ महाराज आ गया। अब आपने अब फिर से पूछो। हाँ फिर से महाराज जी, पूछो। हाँ तो तुरानंद जी कहते हैं कि लव ऑल बीइंग्स, लव टुवर्ड्स ऑल बीइंग्स। तो मैं सबको कैसे प्यार करूं? मैं एक जानवर को ये सब मतलब प्यार कर सकता हूं, जैसे शेर भी भगवान है, ये भी भगवान है, क्योंकि वो दूर है, मेरे को परेशान नहीं कर सकता, और एक मैं भाव थ्योरेटिकली रख सकता हूं। लेकिन इफ देयर इज ए विकेड पर्सन जो मुझे चोट भी पहुंचा सकता है, मेरे को हानि कर सकता है, उसके प्रति मैं एक प्यार का भाव कैसे लेके आऊं? मैं पवाहारी बाबा के कमरे में चोर घुसा था ना? जी जी जी। और वो लेके भाग रहा था। हाँ जी जी पवाहारी बाबा उसके पीछे भागे, जी 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 उसको पकड़ा, हाथ जोड़ के कहा प्रभु आप आए थे, आपको डिस्टर्ब हुआ, ये लीजिए आप जो ले जाना चाहते थे। जी जी जी। तो हाउ कैन इट बी? दैट इज द आइडियल व्हिच हैज बीन डेमोंस्ट्रेटेड। संतों के जीवन में दिखाई देता है ये हाईएस्ट है काफी। हाँ, जब ठाकुर ने तो सभी पापियों को देखा ना, जी जी जी। तो ठाकुर ने भगवान रूप के भी गिरीश बाबू को कि कैसा बोलते थे कि ऐसा प्रेम मेरे को ठाकुर के सिवा और किसी ने नहीं किया। तो ये संत लोग, अवतार लोग इसी बताने के लिए ही तो आते हैं। They are the नॉट इज highest ideal. भाई जो भी हो, इट इज द आइडियल। Ideal. यही तो बात बोल रहे। We have to work towards it. चाहे Okay. कितना किलो। जी महाराज, that's all महाराज जी। हाँ। प्रणाम। अच्छा तीसरा कौन? कुंडू का नंबर है? नहीं, देवाशीष। देवाशीष हो गया? देवाशीष नहीं हुआ? हाँ, प्रणाम प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हाँ देवाशीष आ जाओ तो। महाराज जी मेरा पहला क्वेश्चन है, लेटर 77, 78 एंड 84 तीनों में ही इसका जिक्र किया है महाराज जी ने। इन ऑलमोस्ट ऑल द लेटर्स ऑफ स्वामी तुरानंद जी महाराज, he is talking about self surrender to God, but as you said, it is very difficult to do the self surrender or sharanagati. What should be our way of sadhana? Will we not get the grace of the Lord if we cannot surrender ourselves completely 100%? बाबा शरणागति इतनी आसान नहीं है, ये बार बार बोल दिया है। यानी जब तक वासनाएं रहेंगी तब तक शरणागति नहीं आती। गिरीश बाबू को कितना सहन करना पड़ा था, उन्होंने शरणागत किया ना। ठाकुर ने कहा कि सुबह शाम ध्यान करो तो वो नहीं कर पाएंगे, फिर ये कहा ये करो वो भी नहीं कर पाएंगे, तो क्या अच्छा तुम मुझे बकलमा दे दो। बकलमा दे दिया है ना, पूरा शरणागति। तो क्या वो आसानी से हुआ था? No. पत्नी मरी, पुत्र मरा, चुपचाप सहन करना पड़ा था उनको। तो शरणागति बाबा अत्यंत कठिन है, मोस्ट डिफिकल्ट है, इसमें कोई शक नहीं। गिरीश घोष की तरह सबको सहन करना पड़ेगा। और फिर कहते हैं कृपा है, कृपा की बात है ना ग्रेस, बार बार थोड़ा सा कृपा की वायु जो है बह रही है, लेकिन हमारा ईगो का हम पान नहीं करते हैं। वी आर नॉट प्रिपेयर टू गिव अप अवर ईगो। और इसलिए कहते हैं कि शरणागति इतना आसान नहीं। जो मिला उसको खा लिया, अपनी इच्छा छोड़े बिना कुछ नहीं होता। तो इसको क्या जवाब देंगे आपका, ये बताइए। वो एक कहानी भी है शरणागति की, कृष्णार्पणमस्तु कहानी है कि एक महिला थी, वो कृष्ण जो भी खाना खाती थी तो बोलती थी रोटी बनाए कृष्णार्पणमस्तु।
खाना खाया, कृष्णार्पणमस्तु। तो झाड़ू लगाती थी तो कृष्णार्पणमस्तु करके झाड़ू धूला फेंक देती थी। वो ऐसी शरणागति हो गई थी उसकी कि वो धूला जो है वो कृष्ण के कमरे मंदिर में जाके उनके ऊपर चढ़ जाता। जो खाना वो बनाते थे, खाना चढ़ाते थे, तो वो चला जाता था कृष्ण के मंदिर में। ऐसी शरणागति हो गई थी। उसके बाद जब मरते समय उसने कहा कृष्णार्पणमस्तु, तो वो मंदिर की मूर्ति टूट गई। ये ऐसा एक कहानी है। वो अपने गीता प्रवचन उन्होंने विनोबा भावे ने उसका वर्णन किया। तो ये तो बहुत ऊंची बात है, मतलब लेकिन सत्य ये है। कथामृत में है वो रामेर इच्छा स्वामी रामेर इच्छा। राम की इच्छा है ना। तो वो सब कुछ राम की इच्छा, उनको पकड़ के ले गए तो भी राम की इच्छा, छोड़ दिया तो भी राम की इच्छा। तो ये इतना अच्छा आसान नहीं है। पर कम क्या होता है, अगर जीवन में थोड़ा सा, अगर जीवन में आप शरणागति लाएंगे तो साइकोलॉजिकली रिलैक्सेशन होगा, टेंशन कम होगा। बस ये ध्यान, इतना एडवांटेज है। इसके अलावा शरणागति की प्रैक्टिस वेरी वेरी डिफिकल्ट। यानी वो आप रोज सुबह शाम सब कुछ शरण कर दिए, रात को सोते समय प्रभु जो कुछ मैंने किया सारे दिन वो प्रभु तुमको समर्पण, और सुबह ध्यान करो, सुबह प्रार्थना करो, तो फिर ठाकुर को प्रणाम करो और कहो प्रभु आज दिन भर में जो करेंगे वो आपको समर्पण। ऐसा शुरू करो, धीरे धीरे उस पर विचार करते रहो। जो काम करें उसके पहले भगवान को स्मरण करो, और काम समाप्त हो गए उसके बाद स्मरण करो। बिना कंटिन्यूस स्मरण के शरणागति होती नहीं है। आई डोंट नो हुआ कि नहीं तुम्हारा क्वेश्चन? हाँ जी महाराज जी, हाँ अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ महाराज जी, थैंक यू। इस लेटर्स में हर जगह में महाराज तुलसीदास जी महाराज बोल रहे हैं कि यू विल सक्सीड व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ फुल्ली टू हिम। लेटर 79, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट कंप्लीट रेजिग्नेशन टू गॉड। लेटर 78, there is no refuge other than God because he alone is true and eternal। लेटर नंबर 84। सब जगह में देखेंगे तो ये सभी जगह पूरा नहीं है, पूरे जितने हैं ना शरणागति का ही है सारा, नो पूरा डाउट शरणागति का ही है। हाँ हाँ। ठीक है महाराज जी, हुआ महाराज जी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेटर 77, फर्स्ट लेटर में है, वी लर्न फ्रॉम द गीता दैट फ्रॉम द कंपनी ऑफ द होली दैट he who takes refuge in God all his troubles cease and the Lord carries all his responsibilities। So my question is, we are worshipping Sri Ramakrishna, fixing our mind on him as much as possible and bowing down to him. Now how will we become sure that I have really taken refuge in him? Don't worry about becoming sure. करते जाओ। Go on surrendering. अच्छा ठीक है उसका महाराज। अभ्यास, डेवलप ए हैबिट। जैसा ठीक है अभी मैंने कहा ना हाँ ठीक है, समझ गया कि महाराज। सुबह प्रणाम किया, खाना खाने के पहले याद किया, खाना खाने के बाद में याद किया, कंटिन्यूअसली रिमेम्बर और से प्रभु शरणागत शरणागत शरणागत। तब ऐसा है ना, देयर इज नो लिमिट। और तुम देखोगे कि अरे कुछ नहीं हुआ, सारा जीवन निकल गया, शरणागति की बकबक बातचीत करते रहे, कुछ नहीं होता। डोंट थिंक दैट देयर इज इजी। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू, समझ गया महाराज जी। अच्छा थर्ड क्वेश्चन महाराज जी, ये हाउ डू यू नो दैट वी आर वेटिंग पेशेंटली एट द डोर फॉर हिज ग्रेस। एक ही बात हो गया, तो एक ही बात है, एक ही बात हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, does practicing more spiritual discipline one will succeed surrendering oneself to him। ये कोई माने देखो ऐसा है कि what do you mean by spiritual practice? देखो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का होता है निरंतर भगवान का नाम करना, निरंतर भगवत स्मरण करना, ये है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अगर ये करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किए जाओ। बिना उसके तो सरेंडर होता ही नहीं है। कहा ना कि डू प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली, इट बिकम्स वो निरंतर डू प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बार बार करते रहो, एक मेंटल स्टेट हो जाने चाहिए कि भगवान में मन निरंतर पड़ा हुआ।
Thank you, Maharaj ji. Thank you, Maharaj ji. Thank you. Page question number 4, page number 147. ठीक है, Maharaj ji, question number 4 है, page 147 and 148, letter number 80 में है, how to make God as the first object of love. तो ये अभी आपने बताया कि continuous recollectedness, how, तो इसका जवाब मिल गया. How to keep him always in our heart, so that उसका भी सेम अभी ये भी बताया आपने. ये तुम्हारे जितने क्वेश्चन थे ना उससे रिलेटेड है सबके सब. हाँ, ये हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं. 149 लेटर 1881, माई लॉर्ड इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. तो ये हम लोग तो श्री रामकृष्ण को समझ सकते हैं, ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. माई गुरु इज द गुरु ऑफ द वर्ल्ड. तो ये भी आपने दिलीप भाई के बारे में बता दिया. ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया 149 में, बट वर्ड्स बिकम फ्रूटफुल when one realizes that God is the beginning, middle and end of the world. ये थोड़ा बताइए क्या है. भगवान जो है वे भगवान जो है वो पांचवा क्या है, यानी God is the beginning, middle and end of the world, isn't it? Words. हाँ, भगवान जो है वो सर्वत्र हैं. हाँ, ये बात है. हाँ, यानी भगवान जो है पृथ्वी के अंदर है, भगवान जगत के सृष्टि के पहले थे, सृष्टि के बीच में है और सृष्टि के अंत में है. ये स्टेटमेंट यहाँ पर कहा गया है, भगवान सर्वत्र हैं. ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी, थैंक यू महाराज जी. क्वेश्चन नंबर 7 में है, हाउ साधना or unswavering faith is the most important prerequisite for self knowledge. Shraddha, not sadhana, I'm sorry. How Shraddha or unswavering faith is the most ये भी हो गया, अभी सुबीर को आपने बताया, ये भी हो गया. श्रद्धा पे तो डिस्कस हो गया है पूरा. और इसका हो गया महाराज जी, अभी सुबीर को बताया आपने. लेटर नंबर 85 बिगिनिंग में है, श्री कृष्णा says one ought not to give up the work to which one is born, O son of Kunti, though it has its imperfections. थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए ना. What are the imperfections बता रहे हैं भगवान ने. तो जैसे कहा है अपना स्वधर्म जो है उसको मत छोड़ो, यही बात हो रही है ना. हाँ, तो उसमें तो स्वधर्म जो है वो सदोषम अपि न सृजे, ये बात है. वो ट्रांसलेशन तुमने किया है. स्वधर्म अपि अर्जुन सदोषम, दोष हो तो भी नहीं तजे. अर्जुन जो है वो युद्ध कर रहा है, उसको कहा कि तुम मत छोड़ो इसको, और अर्जुन ने कहा अरे मैं इतने लोगों को मारना पड़ेगा. ठीक है, मारना पड़ेगा, मारेंगे तो दोष होगा ना. अर्जुन ने तो कितने दोष गिना दिए ना, लोगों को मारूंगा, विधवा हो जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे, माँ सब लोग रोएंगे, इतना बड़ा दोष है. तो भी भगवान कहते हैं कि नहीं, तो भी किए जाओ. महाराज गीता में ये भी कहा ना, पराधर्म भयावह. हाँ, परधर्म भयावह, दूसरा का धर्म नहीं करो. तो स्वधर्म की बात चल रही है इनकी यहाँ पर, स्वधर्म की बात. ठीक है महाराज जी. तो अब सन्यासी है तो उसमें क्या धर्म स्वधर्म नहीं. अरे सन्यासी तो कुछ नहीं कर रहा है, बैठे बैठे खा रहा है, तो ये भी तो दोष है ना उसका. कुछ नहीं कर रहा है. गृहस्थ के दोष हैं, सन्यासी के दोष हैं, तो सबके दोष हैं. सभी के कर्म जो हैं, जो भी कर्म करोगे उसमें दोष होगा ही. अलग अलग प्रकार के इम्परफेक्शन तुमने पूछे, तो इम्परफेक्शन अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं. तुम्हारे टीचर का इम्परफेक्शन एक प्रकार का होगा, एक डॉक्टर का इम्परफेक्शन दूसरे प्रकार का होता है. हर एक दोष के हर एक जो वो है उसमें कोई दोष बने. अच्छा, समझ में आया महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, समझ में आया. अभी ये है, हाँ, अभी 9th क्वेश्चन, लेटर नंबर 85, those who have surrendered themselves to him have no fear. My question is, when the testing time comes, we become fearful. How to practice fearlessness in that condition? कौन से? इसमें बताया गया कि लेटर नंबर 85 में, those who have surrendered themselves to him have no fear. My question is,
तो हमने तो सरेंडर नहीं किया तो हमारे जीवन में तो फियर आएगा ही। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि जो जिसने सरेंडर किया उसके जीवन में भय नहीं रहेगा। हम्म, तो हम लोग तो सरेंडर कहाँ किया हमने, हमारे जीवन में तो भय रहेगा ही। हाँ, ठीक है महाराज, समझ में आया। ठीक है, सरेंडर हुआ नहीं है। ठीक है महाराज जी, लास्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 153। गॉड इज ग्लोरिफाइड in the beginning, the middle and the end of the Vedas, Puranas, Ramayana, Mahabharata and other scriptures. इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। नहीं तो उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसको ग्लोरीफाई और भगवान की उनका उनका वर्णन किया गया, उनको उसकी स्तुति की गई है। उसमें प्रश्न क्या है तुम्हारा? इतना ही है बस। हाँ, ये प्रश्न क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बताया। ठीक है, सब में ग्लोरीफाइड हो गए थे। भगवान की सब जगह स्तुति की गई है, ये क्या प्रश्न है क्या? नहीं, ठीक है महाराज जी। महाराज जी, हाँ ठीक है महाराज जी, समझ में आया महाराज जी। महाराज जी, लास्ट क्वेश्चन जो है मैंने पूछा नहीं यहाँ पर, लेकिन मेरा ये सोच रहे थे कि पूछूं तो ये स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं, लव इज द ओनली बोट दैट फेरीज पीपल अक्रॉस द ओशन ऑफ इग्नोरेंस। थोड़ा सा इसको बताइए। क्या क्या क्या? स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं इसकी, लव इज द ओनली बोट दैट फेरीज पीपल अक्रॉस द ओशन ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञान को दूर करने के लिए हाँ, प्रेम, भगवान से भगवान के करो। प्रति, भगवान के प्रति प्रेम ही एकमात्र नौका है। Yes. अच्छा ठीक है। भगवत भक्ति है। ठीक है महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। सुनो सुनो सुनो, अब जरा जरा ध्यान से करो। सारा एक सप्ताह तक लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। आखिरी दिन जब बोलता हूँ तो 5 मिनट में लेटर लिए क्वेश्चन बना के भेज देते हैं। ऐसा नहीं होगा। और ये तुमने क्या क्या प्रश्न किए, 3-4 प्रश्न, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वही है। एक ही प्रश्न के 3 प्रश्न करके देखो, ये क्या कर रहे हो भाई? आप लोग ना सोच समझ के करो, ये क्या बात? ठीक है महाराज जी, अगले से तुमको नहीं कहा, मैं सबको कह रहा हूँ। अगले बार से मैं देख लूंगा महाराज जी। महाराज जी अभी फियर के बारे में बोल रहे थे ना, तो वो फियर के लिए मैंने भी आपको 15-16 साल पहले चंडीगढ़ में एक बार पूछा था कि हाउ टू गेट रिड ऑफ द फीलिंग ऑफ फियर। आपने मुझे एडवाइस दिया था, जो मैं अभी पकड़ के रखता हूँ, कि रीड स्वामी जी, दैट्स ऑल। हाँ, मैं तो सबको यही बोलता हूँ। आई रिमेम्बर दिस, 16 साल पहले भी आपने बताया था। मैं सबको यही बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, रीड स्वामी जी। कुंडू आ जाओ, कुंडू। Yes, Maharaj. Pranam Maharaj. हाँ, Maharaj, question 1, letter number 81, Swami Turiyananda advises that one must get rid of depressed mood. Whereas Swami Brahmananda said that one must keep the divine discontent within. Can you please explain the difference between these two statements for a sadhaka? देखो, डिप्रेशन एंड डिस्कंटेंट, ये दो इंग्लिश वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग बिल्कुल भिन्न है। Yes, उसको Maharaj. कंफ्यूज करने का प्रश्न नहीं उठता। ना, हाँ, बट दोनों में तो मन में तो अनरेस्ट तो होता ही है। नो। सारे संसार में जितने लोग हैं ना, उनके जीवन में डिस्कंटेंट है। उनको मकान नहीं बना, उनका लड़का एग्जाम पास नहीं हो रहा है, वो पास हो जावे तो अच्छा रहेगा, किताब खरीदनी है। डिस्कंटेंट सारे संसार में सभी व्यक्तियों के जीवन में डिस्कंटेंट है कि नहीं, असंतोष है कि नहीं? Yes. सभी लोग किसी न किसी प्रकार से असंतुष्ट हैं, लेकिन उससे क्या वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं? असंतोष के कारण ही कुछ प्रगति होती है। आध्यात्मिक जीवन में भी असंतोष ही होगा तब प्रगति होगी। संसार में भी असंतोष, लाख रुपया हो गया तो भी असंतोष, अभी संतुष्ट नहीं हुआ, करोड़ रुपया होना चाहिए, तो उससे क्या डिप्रेस होता है क्या? हाँ, मतलब अभाव बोध जो है उससे हम मतलब कोशिश करके उसको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन डिप्रेस्ड जब हो जाते हैं तब हमारा काम करने की इच्छा ही खत्म हो जाता है। ऐसे बोल रहे हैं। हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न यही तो है।
हाँ महाराज. No, you just understand what is the discontent. And then Yes. the question of this confusing it with depression does not arise at all. ठीक महाराज. हाँ, तो ये डिप्रेस्ड मूड जो है, डिप्रेस्ड मूड इज ए प्रतिबंधक फॉर ए साधक. हाँ. ओके But discontent has nothing to do with it. ओके ओके ओके. Now letter number 92. Chanting the Lord's name is the means of perfection. This seems the easiest path. Chanting, like we can all do. Then why we cannot stick to it and keep wandering through the maze of spiritual injunctions and different paths of yoga? क्योंकि चैंटिंग ऑफ द नेम ऑफ गॉड इजिएस्ट है, लेकिन हमारा चैंटिंग कैसा होता है मालूम है? मैकेनिकल, राम 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 बीट 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 कर लिया, 1000 कर लिया, 100,000 कर लिया, ऐसे नहीं होगा. अच्छा. हाँ, पूरा. प्रेम से और तद जप तद अर्थ भावनम, गीता में पातंजल योग सूत्र में जो है, जप करोगे, मन को एकाग्र करोगे, मने बने जो से पूरे एकाग्रता से नाम को सुनोगे, उसके अर्थ का चिंतन करोगे, तब वो होगा. तब तो एक बार भगवान का नाम लोगे ही तो भगवान प्रकट हो जाएंगे. इतने दिन करने की जरूरत भी नहीं है. तो ये इतना पावरफुल है, लेकिन हम करते नहीं है ना, इसलिए इतना सब बाकी सब चीजें भी करते रहते हैं. और जितना भी करते हैं ना, वो भी आधे मन से करते हैं. भगवान का नाम भी आधे मन से करते हैं, और योग की एक्सरसाइज की वो भी आधे मन से करते हैं. किसी साधना में विश्वास नहीं. ऐसा होगा नहीं बाबा, व्याकुलता तो है नहीं. बिना व्याकुलता के कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला. और महाराज जी, आप तो बोलते हैं कि मनी 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 बोलने का वजह से रामकृष्ण 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 बोलो तो अच्छा है. हाँ, तो ठीक है, यानी मनी को हमने दूर किया, रामकृष्ण को कहाँ पाया? रामकृष्ण को थोड़ी बात कर. मनी हम मन से हटेगा तो रामकृष्ण आ जाएगा. रामकृष्ण आता नहीं, वहाँ पे वो मनी आ मन जाता वापस. वो मनी जो है ना, पैसा तो है, वो अंदर बैठा हुआ है ना. रामकृष्ण ऊपर ही ऊपर ही रहता है. अच्छा, Yes. अब So ऐसा ही होगा. सतीश वीक आ जाओ. ना महाराज. हाँ भाई. जी महाराज. महाराज, first question, letter 81 to Bihari Babu. Yes. He was feeling low that he has not achieved anything in life. Maharaj says Thakur did not care for self-conceit, but he also didn't like self-pity and self-esteem, self-abasement. My question, Maharaj, how to drive balance between the two attitudes? Maharaj, hope and despair come and go. Mind is sometimes elevated, sometimes at very low ebb. We can't help. Secondly, this is a fact. We have not achieved anything in life. This is a fact. If we start telling ourselves that we are sadhkas, then it is also harmful. How to drive balance between the two attitudes? देखो, ऐसा है, पहली बात यह है कि आप असहाय हो गए, यानी फेलियर होने के बाद में भी साधक का भाव बना रखना. फर्स्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इज ऑलवेज मेंटेन ए साधक का भाव. राइट महाराज. दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. सेकेंड इज, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप पाएंगे कि 10 साल पहले जो थे उससे अब थोड़ा बहुत तो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हुआ है. जी राइट महाराज. ये भी पाओगे तो. जी महाराज. अब यही है कि अगर ज्यादा करते, तेजी से करते तो ज्यादा होता. जी अब परिस्थितियों के अनुसार, आप तो सन्यासी तो हो नहीं, गृहस्थ में हो, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उसके बीच में आपने किया, फिर भी आपको कुछ प्राप्त हुआ है, ये भी तो सोचो. जी महाराज. ठीक है, इसलिए ऐसा है कि उसके बाद में अगर यदि आप ऐसा नहीं करते, यहाँ पर नहीं आते, तो पता नहीं कहाँ नीचे चले जाते, ये भी तो सोचो. जी महाराज. नीचे तो गए नहीं हो. जी महाराज. अब अगर आपको ये लगता है तो स्ट्रगल करो, प्रॉब्लम्स आपके हैं, संघर्ष करो, उनको दूर करने का प्रयत्न करो. जी महाराज, दीनहीन का भाव तो रखना चाहिए ना मन में. नहीं, वो तो है कि डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन
जी महाराज, जी जी तुम तो क्या दिन ठीक इनका ठीक ठीक डिप्रेशन हो जाता है, अरे हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं। जी जी महाराज, हाँ। जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, our will is God's will, letter 91. Maharaj, we often tell ourselves that it is God's will, but it is very difficult to know God's will. Then how do we satisfy and calm our mind? हम तो कहते हैं गॉड्स विल, परमात्मा ने चाहता था इसलिए हो गया, लेकिन हम तो जानते नहीं गॉड्स विल क्या है, तो अपने मन को कैसे शांत करें? देखो भाई, ऐसा है कि मैं तो कभी ये सोचता नहीं गॉड विल, पता तो चलती नहीं है कि गॉड विल है कि नहीं है। सच पूछा जाए क्या है कि भगवान ये सब चला रहे हैं। भगवान हमको यहाँ तक लाए हैं, उन्होंने हमारी रक्षा की है, हमको साधना के सब सुविधाएं सुझाव दी हैं, इतना सब एडवांटेज दिया है, ये भगवान ने किया है। लेकिन हमेशा ये याद रखो कि यानी उसको अगर गॉड विल के लिए भगवान के हमेशा याद रखना, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। कुछ भी करने के पहले भगवान को याद रखो। जी महाराज। और उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, हमें बताओ। यानी ये जो लोग करते हैं वो कहते हैं कि आपको कुछ काम शुरू करना है तो व्याकुल हो के प्रार्थना करो भगवान से कि मुझे बताओ कि मैं करूं कि नहीं करूं, क्या करना है कि नहीं कर रहा हूँ। रोज सुबह प्रार्थना करो कि प्रभु मैं कुछ आज क्या करना है, अब बताओ। व्याकुल हो के प्रार्थना करो। तो जो लोग उच्च कोटि के हैं वो तो बता देते हैं, ठाकुर को बता दिया कि तुम करो। वो तोतापुरी आए हैं, माँ जगदम्बा ने कहा हाँ मैंने ही भेजा है उसको तुम्हारे पास में, जाओ तुम उसको वो करो। तो ठाकुर को कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा, लॉर्ड्स विल जो है, प्रभु आपकी विल क्या है वो हमको कृपया बताइए। और उतना करने के बाद में भी व्याकुल होकर प्रार्थना करिए, धैर्य से सूखिए। उसके बाद में भी, उसके बाद जो ठीक आपको लगे वो करो। इज इट ओके? क्या हुआ सतीश? इसका म्यूट हो गया। किसका? म्यूट। मेरा तो नहीं। सतीश का। महाराज सतीश का म्यूट लग गया। जी जी मैं सुन रहा हूँ। जी जी महाराज, फिर जो भी रिजल्ट होता हमारे काम का, तो वो तो हम कह सकते हैं कि जो गॉड की इच्छा वो हो गया। ये तो हम कह सकते हैं अपने मन को कहने को तो कहने को कर सकते हो। कहने को मैंने कहा कहा करे किए जाओ। जी जी, ये प्रभु की इच्छा से हुआ है, प्रभु की इच्छा से हुआ है। बड़ी जब इच्छा बुरा हो तब भी सोचना है कि प्रभु की इच्छा से हुआ। राइट राइट जी। लास्ट क्वेश्चन महाराज, इन कथामृत ठाकुर सेज God resides in everybody, the heart as विभु की तरह वो सभी के हृदय में विराजमान है। भगवान गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है कि हृदय दर्शी अर्जुना हृदय देश। तो महाराज ये मेरा क्वेश्चन ये है कि डज ही फॉर्मलेस, वो जो हृदय में बैठा है वो फॉर्मलेस के रूप में है, जब फॉर्म हमारी इष्ट के रूप में है? अच्छा, किस रूप में होगा सोचो। वो कृष्ण के रूप में क्या तुम्हारे हृदय में बैठ सकता है? कृष्ण के रूप में क्या लकड़ी में भेजेगा? वो विभु रूप में ही होगा। जी जी चेतन के रूप में। विभिन्न रूप में, चैतन्य के रूप में, कॉन्शियसनेस के रूप में। और जब ध्यान करते हैं तब तो हम इष्ट का ही ध्यान करते हैं ना महाराज। इष्ट का ध्यान करो। तुम चैतन्य का ध्यान कर सकते हो तो करो। नहीं, हाँ नहीं वो होता मुश्किल होता है, नहीं होता महाराज। हो गया? जी जी महाराज, जी महाराज। अच्छा शिवानी। हाँ प्रणाम महाराज। अरे कोई यहाँ पे क्या हुआ? महाराज ने रुकने को बोला है।
हाँ बोलो बोलो। हाँ महाराज, पेज नंबर 146. If one can wait at the Lord's door at the right time, he will fulfill all one's wishes. So how to know about this right time? Why do you worry about the right time? Right. जब भगवान रिस्पॉन्ड करेंगे वही राइट टाइम है। वो थोड़ा है कि वह 350 को हाँ रिस्पॉन्ड करेंगे, 445 को करेंगे, यो टाइम पूछ रहे हो, वो तो भगवान के ऊपर निर्भर करता है वो कब करेंगे। Why do you worry about the right time? Right time यानी according to God's right time. Okay, okay. हाँ, don't Yeah, worry about that. meet God's grace, the right time. Don't worry about that. Every सारा time is right time. तुम्हारा चिंतन है वो राइट टाइम पे हो जाएगा। अरे अपना काम धाम करते रहो, साधना करते रहो, राइट टाइम की चिंता मत करो। बराबर। Next question, page number 149. All time belongs to the Lord. What to speak of noon and evening? तो महाराज इसमें noon and evening जो बोल रहे हैं, what does it mean? मतलब कि उसकी परवाह नहीं होती है संधि टाइम की, इस तरह से कहना चाह रहे हैं? हाँ, कोई भी समय है, सब समय। किसी भी समय ध्यान कर लो। अच्छा। हाँ, समय ध्यान करना। और कई प्रकार से संध्या होती है। सुबह की संध्या होती है, रात को सोते समय संध्या होती है, दोपहर को जब संध्या होती है। तो ऐसी कई संध्याएं होती हैं। संध्या वंध्या क्यों देखते हो? जो टाइम वो है वो सभी टाइम जो है वो संध्या है। सभी टाइम भगवान के ध्यान के लिए अच्छे हैं। ठीक है महाराज। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है ना कि संसार के लोग संसार में लगे रहे हैं, इसलिए उनको बता दिया कि भाई ये संध्या में कम से कम किया करो, तो वो आदत बना लिए थोड़ी सी। लेकिन जो साधक है उनके लिए सभी समय जो है वो भगवान के लिए शुभ है। हाँ, वो महाराज आपने बताया था जैसे कि 15 डे एकादशी बना दी या शिवरात्रि बना दी कि अब तो कर लो। ठीक है महाराज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है पेज 151. Do only that much work which is necessary to maintain the body, and it is better to do that work calmly rather than with disgust. So please explain this. ऐसा है कि यानी काम जो है वो जितना कम हो सके और भगवान में मन लगाओ। अधिक समय जितना समय हो सके भगवान में मन लगाओ, और अकॉर्डिंगली सारे अपने दिन के प्रोग्राम को, टाइम टेबल को वैसा करो। अब तुम्हारा क्वेश्चन फिर से करो। क्वेश्चन महाराज ये था कि जो इसमें लिखा हुआ है एंड इट इज बेटर टू डू दैट वर्क कामली रादर देन विद डिसगस्ट, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाह रही थी मैं यहाँ। यानी अब कर्म हमने कर दिया है, अब वो जाना है, आपको स्कूल में जाना है, तो अब देर हो रही है, जल्दबाजी कर रहे हैं, है ना? तो लौटते समय अरे भाई अब कैसे जाऊंगा, कोई कार चाहिए या ये चाहिए। तो ये सारे जीवन में जो खटखट पटपट होती रहती है, उसके लिए अपने मन को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। दैट्स द पॉइंट। अच्छा। कुछ लोग जो हैं वो बड़े शांत भाव से सब कुछ समझ कर लेते हैं। अरे भाई गाड़ी चली गई, अरे अब क्या करूं? दूसरा आदमी कहता अरे कोई तो मिलेगी, दूसरी मिल जाएगी। और एक आदमी जो है वो चिंता करता रह रहा, क्या करूंगा क्या करूंगा क्या करूंगा। हाँ। तो इस तरह संसार के जितने कर्म है उसमें अपने को ज्यादा डिस्टर्ब न करो, यही तो बोल रहे हैं वहां पे। ठीक है महाराज। हाँ, यही बोला है ना उसमें। Next question महाराज, page 152. But everybody will have to destroy the ego, and when this little ego dissolves, one experiences the manifestation of the cosmic ego or Brahman. How to know that we are becoming egoless, or suggest the parameters to measure that improvement is we are doing, we are working on this or not? ऐसा है कि पहले किसी ने जरा सा टॉन्ट कर दिया तो सारा दिन गुस्सा होता रहते थे। अब कोई बाहर से गाली भी दे देगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले अपना काम, इच्छा मन के काम नहीं मिला था तो बहुत खराब लगता था। अब मैं मिले ना मिले कोई बात नहीं, बड़े मजे से अपना सारा काम सब वो कर रहे हैं। वो उसमें उसने मेरे को बुलाया नहीं,
हमारे मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, ईगो जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब कि अगर हमें फील हो रहा है तो इट मीन्स कि वो ज्यादा ईगो है हमारे अंदर। फील, हाँ, ईगो फील नहीं होना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। अच्छा Yes. महाराज, क्वेश्चन 5 पेज 154. One ought not to give up the work to which one is born, O son of Kunti, though it has its imperfections. But in life, troubles always remain, and even situations also. So throw some light on this. अरे भाई वो सदा रहेगी। सदोषमपि। नहीं, कहते हैं ना कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, कोई ना कोई चीज चेंज हो जाती है, वो किसी भी फॉर्म में अगर चेंज नहीं हो रही है तो फिर भी उसको वो करते रहें बस, मतलब एक्सेप्ट करके। अब ऐसा है कि आप जो अगर आपको बिल्कुल एकाग्रता से करते हैं, भगवत भाव से करते हैं, तो देखेंगे कि या तो आपका मन पूरी तरह बदल जाएगा या वह परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। मन बदल जाता है महाराज, ये तो है। मन बदल जाता है तो बहुत अच्छा, फिर क्या चाहिए तुम। अच्छा, मतलब उस चीज को जैसे पहले सोचते थे वो चीज नहीं है, वो चीज चेंज हो जाती है, थिंकिंग की तो चेंज। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो अच्छा, क्योंकि बराबर कुछ लोग जरा कंटिन्यूअसली जीवन चेंज करते रहते हैं, कहीं भी संतुष्ट नहीं होते हैं, ऐसे भी लोग हैं। ये भी ठीक नहीं था, अरे वो सिचुएशन ठीक थी, अब ये एक सिचुएशन आ गई, अब इसमें भी कुछ दिनों के बाद में डिसकंटेंट हो गए। ऐसा करने से तो काम नहीं चलता ना, हमेशा परिवर्तित होते रहेंगे तो काम चलेगा। ठीक है महाराज, दैट्स। रीता विश्वाल। थैंक यू महाराज, प्रणाम। हाँ, रीता विश्वाल है कि नहीं है? रीता विश्वाल नहीं है? नहीं, आई तो थी, अभी नहीं है। हाँ, अभी नहीं है अभी। रीता नाम तो है अभी, सुन नहीं रही है। नहीं। रीता। हाँ, अच्छा, निवेदिता। इस महाराज, हाँ, मेरा पहला क्वेश्चन है महाराज कि वो व्हाट। तुमने भी क्वेश्चन जो है 5 मिनट में कर लिया। दिन भर 6 दिन तक कुछ नहीं किया, 7 दिन तक, बट 5 मिनट में प्रश्न निकाले, ये नहीं चलेगा। ठीक है बात, ये इतने अच्छा आर्टिकल है, उसको आप ऐसे नहीं करना चाहिए। आइडिया ये है 7 दिन पहले देते हैं और प्रश्न जल्द पहले मिलने का अर्थ है कि ये इनको अच्छी तरह पढ़ो, कुछ इस बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, लेटर्स हैं। ये पहला प्रश्न का हो गया आंसर महाराज, वो सन्यास का है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेकिंग सन्यास वाउ एंड बिकमिंग ट्रू सन्यासी? वो ऐसा है कि सन्यास का जब व्रत लेते हैं तब तो हम सन्यासी जीवन शुरू करते हैं। हाँ जी। और उसको धीरे धीरे हम बाद में प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करते करते 20-25 साल के अंदर हम सच्चे सन्यासी बन पाते हैं। वो जो व्रत है वो हमारे जीवन में जब उतरेंगे तब हम सच्चे सन्यासी। दैट्स द आइडिया। और ये भी प्रश्न है कि हाउ मच ट्रबल वन हैज टू पास थ्रू। वो तो अभी मैंने बताया, पूछा ही था। ऐसा है कि वो महाराज ने, यानी वो ट्रबल का ही जीवन है। यानी क्रिश्चियन तो बोलते हैं कि साधु जीवन जो है वो कठिनाइयों का ही जीवन है। सब लोग संतों में जितने भी हैं उन्होंने कहा था कि साधु जीवन जो है कठिनाइयों का जीवन है। अगर तुम आराम में रह रहे हो तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ तक बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है महाराज कि when does a complete resignation to God come? मतलब पूरी अपनी साधना पूरा मन लगा के करो 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 तो तब आएगा। ऐसा है कि वो बोलते हैं कि समुद्र को तैर के जो पार करना। तो उसमें करते 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 जब बिल्कुल थक जाएंगे, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, जब वो आखिरी मारते हैं तब देखते हैं कि हमको वहां पे भगवान का या एक लकड़ी मिल गई, लकड़ा एक पकड़ मिल गया, उसके ऊपर आ जाए। तो सच्ची शरणागति जो है वो पूर्ण पुरुषार्थ के बाद आती है।
और फिर कहते हैं और क्या ऐसा क्या है कि फिर से पढ़ो तो उसका प्रश्न, थर्ड प्रश्न, तीसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, when does a complete resignation to God come? अब वो तो मैंने बोला है। हो गया। अब हाँ। तीसरा प्रश्न है, if we have sincere and severe longing for God for even for 1 day or 3 days, can it give us liberation? यस यस यस, रो ना, रो। ठाकुर ने तो कहा ना, हाँ, 3 दिन ये भगवान, बार में ठाकुर बार बार कहते हैं 3 दिन रो भगवान के लिए। अरे रो के देखो तो, आर्टिफिशियल रो के भी देखो, वो 15 मिनट से ज्यादा रो नहीं सकोगे, आर्टिफिशियल रोना भी नहीं होगा। सच्चा रोना छोड़ो, भगवान को कोई चाहता नहीं है। चाहते हैं महाराज, चाहते हैं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चाहते हैं। आंसू नहीं आ रहे हैं बस। चाहते हैं। आंसू भी थोड़ा थोड़ा आता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। लड्डू जितना चाहते हैं ना, उतना ही भगवान को नहीं चाहते हैं। हाँ, छोड़ो उतना फालतू उतना, ये ठीक है बोल। तब लड्डू को जितना चाहते हैं उतना ही भगवान को नहीं चाहते हैं, बोलते हैं आंसू आता है। महाराज उसके बाद का प्रश्न है चौथा, व्हाट आर द मेथड्स टू कॉन्कर द डिप्रेस्ड मूड एंड लो एस्टीम? यस, तो तुम्हारा प्रपन्न गीता का क्या हुआ है कुछ है? हाँ, प्रपन्न गीता का वो कौन सी गीता है, वो बाद में आएगा शायद। न, वो मालूम नहीं मुझे क्या है प्रपन्न गीता। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए इसको। हाँ। इसके बाद ही है, उसके बाद है। क्या है? अभी है प्रश्न, व्हाट इज द मेथड टू कॉन्कर डिप्रेस्ड मूड एंड लो एस्टीम? कभी कभी साधना में ऐसा लगता है स्वामी कि विवेकानंद कुछ, को पढ़ो, बोला ना। हाँ ठीक फिर- है। हाँ। उसके बाद का प्रश्न है, प्लीज टेल अस अबाउट प्रपन्न गीता, वो रहने दीजिए। हो गया। फिर What is the meaning of practice more and get absorbed in God? For this, we have to go away from home. निर्जन में जाना है। तो when तो- we come back again to home, our practice becomes again interrupted. मतलब पहले के जैसा ही हो जाता है। तब तो क्या उसके करेंगे लिए भाई? क्या करना है? हाँ, यही पूछ रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि तुम अगर पुरुष होते तो तुमको बोलते थे संन्यास ले लो। अब हम ठीक है। अब छठवा प्रश्न है महाराज, what yoga and Vedic rituals, what are the yoga and Vedic rituals we can practice at the present time? यहाँ पे लिखा है ना एक आर्टिकल में। नहीं, प्रेजेंट टाइम में बड़ा मुश्किल है। हाँ, रिचुअल हाँ। जो है ना, वो प्रेजेंट करना मुश्किल है। हाँ। हम्म। और योगा तो ये मेडिटेशन ही है, वो हाँ, अपना योगा तो अष्टांग meditation योगा। है। योगा ओके। योगा कैन बी डन, बट हाँ। बाकी चीजें नहीं, रिचुअल नहीं हो सकती। अच्छा, अभी थोड़ा एक प्रश्न है, जो कॉस्मिक ईगो है ना अपना, जो लोअर ईगो काट के कॉस्मिक ईगो एंड हिरण्यगर्भ एंड महत तत्व, आर दे सेम? सेम। हाँ, वही पूछ रहे। अच्छा, उसके बाद है, व्हाट आर द सहज कर्म? महाराज कितना अच्छे से प्रश्न किया है। स्वधर्म स्वधर्म, ओके। वो जो सहजम कर्म न त्यजेत, गीता में हाँ, हाँ। भगवान ने किया ना, सदोषमपि बोला था, कर, सदोषमपि त्यजेत, स्वधर्म। अच्छा, लास्ट प्रश्न है, प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस इज गॉड हिमसेल्फ, प्लीज एक्सप्लेन। क्या? प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस इज गॉड हिमसेल्फ, प्लीज एक्सप्लेन। वो कहते हैं कि भगवान के एग्जिस्टेंस का सत्युत जो है, उसका प्रूफ क्या है? भगवान स्वयं है। और भाई ये क्या मतलब मालूम नहीं। उसका अर्थ कैसे होगा? नहीं ना, वो भगवान ही भगवान के अस्तित्व का प्रमाण है। अच्छा। और अगर भगवान नहीं दिखे, भगवान का अस्तित्व हमको नहीं, भगवान का नहीं लगा, तो भगवान नहीं है। वह हमारे लिए भगवान है ही नहीं, क्योंकि हमें भगवान का एग्जिस्टेंस का स्वरूप ही नहीं पता चलता। ये पता नहीं बाबा किस प्रकार से ये कहा गया है, समझ में। बस महाराज यही प्रश्न, बस महाराज धीरे महाराज धीरे जी। मैंने सोच के बनाया है। वो समझ गया था, वो तो समझ ही गया था। महाराज जी, ये प्रपन्न गीता क्या है इसका थोड़ा सा मैंने इंटरनेट में देखा है, मैं बोलूं? हाँ, बोलो, वेरी गुड। तो द प्रपन्न गीता और द पांडव गीता इज रेफर्ड टू एज द सॉन्ग ऑफ सरेंडर। तो ये पूरा शरणागति पे है।
And the hymn begins with homage being paid to those devotees of the Lord who have stood out in history for their spirit of surrender and devotion, like Prahlad, Pundarika, Ambarisha, Shuka, Sonaka, Vyasa, Narad, Parasar, Arjun, Vashisht, वगैरह वगैरह, Vibhishan and all. तो ये पूरा surrender का hymns हैं. That is what I am getting. अच्छा. पांडव गीता भी बोलते हैं इसको. अच्छा. Okay, that's all. और उसमें ये जो जिन लोगों ने शरणागत की है उनका सब वर्णन है उसमें. जी महाराज. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. जी अच्छा, बंद करें? जी महाराज. हैं? वो और कुछ रीता नहीं आई हैं? रीता का प्रश्न बाकी. रीता नहीं आई ना, रीता हाँ. नहीं आई. हाँ. ओम शांति. हरि ओम तत्सत्. श्री रामकृष्ण नमस्तु. नमस्कार सबको. नमस्कार. प्रणाम महाराज. Pranam Swami ji. ये रीता आ गई है. Swami ji, I was coughing very badly. That's why. So can you ask questions? Swami ji, Rita. हाँ, but while you going to, are you ready? I wanted to ask questions, but I was coughing a lot. That's why I couldn't respond Anyway, to now you. ask questions. Okay, Swami ji. We will do Shanti again. Okay. Okay. Swami ji, my first question is letter 77. Swami Turiyananda ji says, what a great joy it would be if we knew how to become instruments in the hands of God. What is the practice? How to become an instrument in his hands? ऐसा है कि एक काम करना. I have got 2 books, Yoga in Day-to-Day Life और हिंदी में है दैनंदिन जीवन में योग. तो उसमें एक आर्टिकल है मेरा शरणागति. Yes. उसको जरा पढ़ लेना. उसमें मैंने लिखा है शरणागति के प्रकार, हाउ टाइप्स ऑफ शरणागति एंड प्रैक्टिस ऑफ शरणागति की साधना. उसको थोड़ा सा कर लेना. उसमें क्या है कि यानी वो एक्चुअली when you take it up, it is a difficult thing, but hold on करना पड़ता है उसको. ऐसा है कि पहले है सकली तुम्हारी इच्छामयी तारा तुम्हें करो माँ, लोके बोले करे आमी. ये भजन जो है वो रोज सुनो. Yes. अच्छा, और इसमें ये सोचने का प्रयत्न करो, आमी यंत्र तुम्हें यंत्री. जब Yes. कर्म करो तो ये सोचो कि भगवान मुझे अंदर में रहकर चला रहे हैं. प्रतिदिन उसको सुबह याद करो और सुबह उसका प्रैक्टिस करने का प्रयत्न करो. Yes. तीसरी बात याद रखना है कि ये शरणागति भगवत चिंतन के बिना नहीं होती. कॉन्स्टेंटली यू हैव टू रिमेम्बर गॉड. अगर भगवान का चिंतन नहीं करेंगे तो शरणागति नहीं होगी. और फिर यह है कि थोड़ा थोड़ा सोचना, यानी याद रखना, थोड़ा समय प्रतिदिन इसके लिए लगाना पड़ेगा. अगर प्रैक्टिस मन लगा के करोगे तो ये हो सकेगा. तो शरणागति कर्म करने के पहले भगवान का स्मरण करना, ये सोचना कि भगवान मेरे हृदय में बैठ के कर्म करा रहे हैं. और तीसरा अंत में भी भगवान का स्मरण करना. निरंतर स्मरण करने के बिना, भगवत चिंतन के बिना शरणागति नहीं हो सकेगी. तो तुमने आज से I am glad you asked the question so that we could discuss it in at least some parts. और वो सकली तुम्हारी इच्छा माँ, तुम्हें सब कर रहे हो, मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो, ये भाव निरंतर बनाए रखना चाहिए. होगा क्या है कि you ask the question but शाम तक चला जाएगा. वो ऑलरेडी सकली तुम्हारी इच्छा, वही गॉड इज, भगवान की इच्छा से तुमको खांसी आ रही है. अच्छा, second question. Second question, actually it's already been answered. Letter 81, page 148, first para. Like Bihari Babu, some of us also feel despondent, lack self-esteem and spirit at times. How to get out of this?
अभी पूछा read Swami Vivekananda. स्वामी जी Continuously Swami read, ji. बार every day Swami Vivekananda को पढ़ना पड़ेगा. Yes, Swamiji. Then third question is letter 85. Page 154, second para. Swami Turiyananda ji says, one should learn how to be united with God and through practice when it becomes one's second nature. हाँ ये भी What is the question? What is the question? वो क्या है? Swami Turiyananda ji said, one attains the goal to be united with God. What to practice to become united with God other than japa and meditation? अच्छा देखो, वो have you read that small little book, Practice of the Presence of God by Brother Lawrence? Yes, I have been reading little by little out of it. No, that one has to be little by little, not only read, it has to be little by little practice. Yes. A practice of presence of God. Think that भगवान God हमारे पास बैठे हुए हैं. अभी क्लास हो रही है तो क्लास में भगवान भी बैठे हुए हैं. हम चल रहे हैं. When are walking, God is walking with you. और जब खांसी आ रही है तो you talk to God and say that God, I have got cough. So in some form or the other, continuously भगवान का चिंतन किए बिना practice of presence of करने के बाद में you live with God. That is the thing in which you. Yes, Swamiji. Is that okay? Thank you, Swamiji. Thank you. महाराज की स्वामी जी का बुक कंप्लीट बस कितने पेज पढ़ना पड़ेगा? अरे ये क्या बात है? रोज समय नहीं मिलता, यही प्रॉब्लम है. अब तुम तो क्या हो के 15 लाइन पढ़ 25 लाइन पढ़ लिया और बोले कि हमने स्वामी जी पढ़ लिया, ऐसा चलेगा नहीं. 10 पेज पढ़ना पड़ेगा. तो 5 पेज तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. 10 देखो पावर आएगा, ब्यूटी आएगी, स्ट्रेंथ आएगा. All that is good will come when the spirit will be awakened. Read Swami Vivekananda. जी. अच्छा अब करें. ओम शांति शांति हरि ओम. श्री राम कृष्णार्पणमस्तु. हाँ भाई. महाराज. नमस्ते प्रणाम महाराज. नमस्ते. प्रणाम महाराज जी. निवेदिता, देवाशीष, भामरे जी, सतीश, रीता, दिलीप भाई, प्रश्न नहीं करती महाराज. शिवानी, सरला बहन, प्रणाम स्वामी जी. प्रणाम स्वामी जी. वेरी गुड. फिर और कौन है? और कौन आया? और कौन? पंकज भाई, पीयूष भाई, मधुबाला, दिलीप भाई, सुदेश शर्मा, और क्या? रेखा, सपना और आशीष अग्रवाल, दीपक, सबको नमस्ते. थैंक यू वेरी मच. वेरी गुड. हाँ भाई. नमस्कार. महाराज थी. हाँ महाराज, आप कह रहे थे ना क्वेश्चंस नहीं पूछते आप लोग, लास्ट डेज में पूछते हो, तो मैंने तो इसलिए लेट किया. बहुत बार आर्टिकल पढ़ती हूँ, जो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाता है उसके बाद पूछती हूँ. दैट इज वेरी गुड. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात. पहले जल्दी पूछते. नहीं, आर्टिकल बहुत अच्छे हैं. हो जाता है. पता चलेगा कि 5-3 साल से हम लोगों को कितना चेंज हो गया, कितनी बातें हमें ऑब्जर्व कर ली है. अच्छे. ये एकदम ठीक बात है महाराज. अच्छा ठीक. ओके महाराज. नमस्कार सबको. नमस्कार. रीता, ट्रीटमेंट करो. Yes, I am taking inhaler and medicine. Okay. बहुत दिन हो गया. You are suffering for a long time. बंद करो महाराज. हाँ बंद करो. चलो प्रणाम महाराज. नमस्कार दिलीप भाई. नमस्कार. प्रणाम महाराज जी. नमस्कार सबको. नमस्कार.